Hello and welcome to Deep Sea for Civil Services. As I have told that I will come up with the physics section, and this is my notes from the Ghatnachakra previous year question book which I had prepared earlier, but I thought that this will be useful in this exam also for the physics section, as by going through the previous year question paper I found it relevant. So here let's go. 2-3 years ago, new international conventions came for the fundamental units for their measurement. For mass, it was decided that now it will be measured in terms of Planck's constant, temperature in terms of Boltzmann constant, amount of substance in terms of Avogadro number, and so there might be a question that mass will be measured in terms of which constant, temperature will be measured in terms of which constant, because this is a fundamental question also and a current affairs related also, so this has high probability. Now we all know the 7 fundamental quantities in physics: length, mass, time, temperature, electricity, and luminous intensity, and amount of substance, and these are their MKS units. Electric current ampere में, luminous intensity in candela, and amount of substance in mole. In one of the question papers, either in 2015 or 18, I missed in the video, a question was that light year is unit of. So since light year is related to distance, another unit for larger distance is parsec. Parsec is also a unit of distance. 1 parsec is equal to 3.25 light year. And this is not relevant here. Knot is a unit to measure the speed of ships. For what it is used? It is used for the measurement of speed. So knot is unit of speed. 1 horsepower is 746 watts. 1 watt is 1 joule per second. Watt is the power, unit of power. Power is energy per second, per time, so time is second. So Mach is used to represent the high speed, and 1 Mach is equal to the speed of the sound, which is nearly equal to 340 meter per second के आसपास होता है. And the supersonic speed is more, when speed is more than the 1 Mach, then that is termed as supersonic speed. Now the unit Pascal is unit of pressure. 1 bar is equal to 10 to the power of 5 Pascal. Decibel is unit of sound intensity. Nautical mile, तो mile आ गया, confirm है कि this is unit of distance. 1 barrel oil is equal to 159 liters. इतना relevant नहीं है यहाँ पे, but this is important. 1 Fermi meter is equal to 10 to the power minus 15 meters. Cubic is cubic feet per second. This is rate of flow of water. Rate of flow of water is measured in terms of cubic, which is cubic feet per second. Related to computers, 1 byte is equal to 8 bits. Thickness of ozone layer is measured in terms of Dobson unit. So question might be asked that Dobson unit is used for the measurement of, so answer will be the ozone layer. And this is conversion formula, ये उतना नहीं important है. Sonar uses which kind of waves? Sonar uses ultrasonic waves. What is audiometer used for? To measure the intensity of sound. Stethoscope, जो हार्ट बीट को सुनने के लिए डॉक्टर्स जो कान में लगाते हैं वो उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं. और फाइगोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर मतलब बीपी चेक करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको फाइगोमैनोमीटर बोलते हैं. लक्स मीटर होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर करने के लिए. सो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ ही जाता है. सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मेजर्ड बाय लक्स मीटर डिवाइस. कैरोटोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्योरिटी ऑफ गोल्ड. राडार इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग विच इज यूज्ड फॉर द प्रेजेंस एंड लोकेशन डिटेक्शन. किसी चीज का लोकेशन फाइंड करने के लिए राडार का यूज किया जाता है. नाउ एनीमोमीटर इज यूज्ड फॉर विंड स्पीड एंड प्रेशर देखने के लिए एनीमोमीटर का यूज होता है. टैक्सोमीटर इज रोटेशन ऑफ द स्पीड ऑफ ए शाफ्ट और डिवाइस. किसी डिवाइस का रोटेशन या स्पीड मेजर करने के लिए. पायरोमीटर हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए पायरोमीटर का यूज होता है. इसको रेडिएशन थर्मोमीटर भी बोलते हैं. पायरोमीटर इज ऑल्सो नोन एज रेडिएशन थर्मोमीटर. दिस वन इज important hygrometer. It is used for measuring relative humidity. Hygrometer. Lactometer for milk density, or we can say that milk purity मेजर करने के लिए. Thermoregisters for electronic thermometer is, and
EM वेव फ्रीक्वेंसी के लिए ऑन्डोमीटर, EM वेव फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए ऑन्डोमीटर यूज होता है. दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, क्रेस्कोग्राफ फॉर प्लांट ग्रोथ मेजरमेंट. व्हाट इज द डिवाइस नेम? क्रेस्कोग्राफ. दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय सर जगदीश चंद्र बोस. रेन गॉज इज यूज टू मेजर द रेन इंटेंसिटी. गीगर काउंटर फॉर पार्टिकल डिटेक्टर. अल्टीमीटर फॉर अल्टीट्यूड दैट इज हाइट. फाथोमीटर फॉर डेप्थ. तो हाइट के लिए अल्टीमीटर और फाथोमीटर फॉर डेप्थ के लिए, इन सी में कोई सब ऑब्जेक्ट है उसके डेप्थ को मेजर करने के लिए फाथोमीटर यूज होता है. पॉलीग्राफ लाइट डिटेक्टर होता है. पॉलीग्राफ टेस्ट होता है फॉर द क्रिमिनल्स. थियोडोलाइट होता है फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर मेजरिंग एंगुलर डिस्टेंस. थियोडोलाइट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगुलर डिस्टेंस. नाउ कमिंग टू द ग्रेविटी सेक्शन. हु सेड, न्यूटन से भी पहले, हु सेड दैट देयर इज अ समथिंग लाइक ए ग्रेविटेशनल फोर्स? इट वॉज ब्रह्मगुप्त. हु सेड इन ब्रह्मगुप्त सिद्धांत? इट वॉज हिज बुक. इन दिस बुक ही सेड दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू अर्थ. सारी चीजें अर्थ की तरफ ही आती हैं. ये सबसे पहले किसने कहा था? ब्रह्मगुप्त ने. सिंस देयर आर फ्यू स्मॉल क्वेश्चंस ऑल्सो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, सो इफ यू कैन रिमेंबर द फार्मूलाज लाइक दिस. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का होता है जी कैपिटल एम, जी एम बाई आर स्क्वायर. जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड दैट मास. F is the gravitational force between two masses m1 and m2 and r is the distance between them. Escape velocity is under root 2g re. Re is radius of earth and for the earth it is 11.2 kilometers. This value is important. This can be asked directly that escape velocity at earth is 11.2 kilometer per second. Orbital velocity is under root 2 into escape velocity is under root 2 times orbital velocity. Now this is an important section. It might be asked that why moon has no atmosphere. चंद्रमा पे कोई एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? बिकॉज escape velocity at moon is very small. It is only 2.38 kilometer per second and on earth it is 11.2 kilometer per second. So वहाँ पे कोई पार्टिकल रुकता ही नहीं है. escape मतलब escape कर जाता है. 2.38 है तो ये तो आसानी से अचीव हो जाता है, तो कोई भी चीज़ वहाँ पे जल्दी से एस्केप हो जाता है, इसलिए एटमॉस्फेयर नहीं है. लाइटनिंग ऑफ ए कैंडल इन स्पेस डजंट प्रोड्यूस ए फ्लेम एंड इट विल बी स्फेरिकल इन शेप. फ्लेम एग्जिस्ट ड्यू टू द पुल ऑफ ग्रेविटी. क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी है नहीं तो वहाँ पे फ्लेम एग्जिस्ट नहीं करता है, पूरा वो गोले की शेप में हो जाता है. रेन ड्रॉप्स का शेप जो होता है वो स्फेरिकल क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. Oil spreads on water surface. Why? Because surface tension of oil is less than that of water. एक क्वेश्चन होता है सोप बबल के अंदर जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है और वो कितना ज़्यादा होता है? 4T/R, where T is surface tension, R is the radius of the bubble. When two bubbles of soap of different diameters come in contact with a tube, मतलब एक ऐसे है, ये बीच में ट्यूब है, एक और सोप बबल है. देन स्मॉलर बबल विल बिकम स्मॉलर एंड बिगर विल बिकम बिगर. स्मॉलर वाला और स्मॉलर हो जाता है और बिगर वाला और बिगर हो जाता है. अगर कुछ चार्ज, सम चार्ज प्लेस्ड ऑन सोप बबल, तो उसका साइज में क्या होगा? अगर ये बबल है, इस पर कुछ चार्ज रख दिया जाए, देन द रेडियस विल इंक्रीज. क्यों? क्योंकि चार्ज अगर सेम टाइप का रखा जा रहा है तो उनके बीच में रिपल्सन होगा, तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे तो दूर जाएंगे ना, तो रेडियस विल इंक्रीज. ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? ऑन पास्कल्स लॉ. ए सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग इंडिकेट दैट वेदर विल बी. बैरोमीटर प्रेशर मेजर करता है, अगर सडन फॉल उसमें हो गया तो ये इंडिकेट करता है कि वेदर विल बी स्टॉर्मी. वाइल फ्लोटिंग इन अ सी अबाउट 1/8 to 1/9 पार्ट ऑफ आइसबर्ग इज अबव द सरफेस. वाटर डेंसिटी मैक्सिमम कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर डेंसिटी इज मैक्सिमम. दिस इज द फैक्चुअल point. It is always true that at 4 degrees Celsius water density will be maximum and at less than 4 degrees Celsius तब भी density घटती है और more than 4 degrees Celsius तब भी घटती है. ये 4 डिग्री पे maximum होती है. Due to very small wavelength light appears to travel in a straight line. स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होती क्यों दिखती है? क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत स्मॉल होता है, ऐसे ऐसे इतना छोटा होता है वेवलेंथ कि ये ऑलमोस्ट दिखता है कि सीधी जा रही है.
एंडोस्कोप यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर एग्जामिनिंग इनसाइड ऑफ पेशेंट स्टमक वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो जो एंडोस्कोप डॉक्टर्स यूज करते हैं पेट के अंदर का एग्जामिनेशन करने के लिए, वो TIR पे वर्क करता है। TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड ए CD या कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर क्या यूज करता है? लेजर बीम यूज करता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल्स इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, तो ऑडियो सिग्नल्स को टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में सेंड करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किया जाता है। रेटिना पे जाके वो न्यूट्रल इम्पल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो विजुअल रिसेप्शन होता है वो कहाँ पे अपर होता है? वो रेटिना पे मिलता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। इमेज जो बनती है रेटिना पे आँख की, दैट इमेज इज property of that image is that it is smaller than the object and inverted, also real. So image formed at retina is smaller, inverted and real. जो स्टार्स का कलर होता है वो क्या इंडिकेट करता है कि इसकी एज कितनी है और इसका टेम्परेचर कितना है। जब टेम्परेचर हाई होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा है मतलब यंग एज का है, यंग एज का है ब्लू स्टार है। अगर टेम्परेचर कम होता है तो ओल्ड स्टार हो जाता है, ओल्ड होता है तो धीरे धीरे वो रेड की तरफ जाने लगता है। जो डिफ्यूजन होता है लाइट का एटमॉस्फेयर में, दैट इज ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स। सन इज विजिबल टू अस फ्यू मिनट्स बिफोर एक्चुअल सनराइज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण सन जो होता है सनराइज के कुछ टाइम पहले ही दिखने लगता है, हमको लाइट दिखने लगती है। और सन एंड मून अपीयर इलेप्टिकल नियर हॉरिजन, क्यों? वो भी रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है कि वो इलेप्टिकल दिखाई देते हैं। स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड दैट इज वाई रेड लाइट का डिस्पर्सल सबसे कम होता है तो वो दूर तक, अब जिसकी एनर्जी ज़्यादा डिस्पर्स हो जाएगा उसकी एनर्जी फैल जाएगी तो वो दूर तक नहीं दिखेगा। अब जो कम डिस्पर्स होगा इतने में ही है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा दूर तक जाएगी। दैट इज वाई द रेड लाइट, ट्रैफिक लाइट जो होता है वो डेंजर सिग्नल जो होता है वो रेड कलर का मोस्टली आप देखेंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ विच फिनोमिनन? स्कैटरिंग फिनोमिनन। क्यों? अभी हमने देखा कि शॉर्टर वेवलेंथ का स्कैटरिंग ज़्यादा होता है, तो स्काई में स्कैटरिंग ज़्यादा जो हो जाएगी तो वो ज़्यादा आसमान को पूरा छा लेगा वो कलर। ड्यूरिंग सनराइज सन अपीयर्स रेड, रेड क्यों दिखता है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही रेड लाइट स्कैटर्ड होता है लीस्ट। एस्ट्रोनॉट को स्काई कलर क्या दिखेगा? ब्लैक दिखेगा बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन स्पेस, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कोई स्कैटरिंग नहीं होगी इसलिए उसको केवल ब्लैक दिखेगा। अब सी ब्लू क्यों दिखता है? बिकॉज रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई वाटर ड्रॉप्स, आकाश से रिफ्लेक्शन होता है और स्कैटरिंग होती है लाइट की वाटर ड्रॉप्स से, इसलिए सी हमको ब्लू दिखता है। नाउ विच काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड इन ए ड्राइविंग कार, पीछे देखने के लिए कौन से टाइप का मिरर यूज होता है? कॉन्वेक्स मिरर। एंड डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं दैट इज कॉनकेव मिरर। वन क्वेश्चन इज दैट एट 12 noon व्हाई देयर इज नो रेनबो सीन, क्यों? क्योंकि रेनबो जो होता है वो अपोजिट टू द सन होता है, इसलिए रेनबो इज नॉट सीन एट 12 noon व्हेन सन इज ओवरहेड। एयर बबल इन वाटर एक्ट्स लाइक ए, कौन से लेंस जैसा बिहेव करता है? कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस मतलब डाइवर्जिंग लेंस जैसा काम करता है एयर बबल जब वाटर में चला जाता है। नाउ हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? मायोपिया क्या होता है? और कौन कौन से लेंस यूज होते हैं इनको दूर करने के लिए? देखो हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस यूज होता है।